اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اونٹ کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو بنائے ہیں عبرت کے لیے بنائے ہیں۔ ہم سب اس آیت کریمہ میں غور کریں گے اور دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئے گی۔ دیکھیے یہ سامنے پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم سب پتھر مار کر کے آئے تھے یہاں نہانے کے لیے، پتھر مار کے دیکھے اتنی دوری اور اتنی اونچائی ہے کہ اس میں غور کرنے کا مقام ہے۔ اور ہمیں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا فرمایا، اس زمین کو، اس دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن پیدا فرمایا ہے، اور اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا۔ یہ ہے پہاڑ، یہ سب پہاڑ ہیں جو ہمیں دیکھ کر کے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اتنے اونچے اور اتنے اونچائی پر پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے معتبر اور کتنے بابرکت اور اچھا چیز بنا دیا ہے۔ اور یہ پہاڑ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ زمین ہلے نہ۔ یہ زمین جب بنائی گئی تھی تو ہل رہی تھی، ڈول رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ بنا دیا تاکہ ہلے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتوار کے دن کے بعد سوموار کا دن جو شروع ہوتا ہے، سوموار کے دن، پیر کے دن، یہ سارے پیڑ پودے لگائے۔ یہ جو ہم سب دیکھتے ہیں جنگلات ہرے بھرے، دھرتی کے اندر جو زمین کے اوپر جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سب بنایا۔ یہ سب پیڑ سب دکھائیے آپ، یہ پیڑ دکھائیے، یہ کیمرہ مین میرا یہ کیا ہے، ایڈیٹر ہے، یہ سب جو درخت ہیں، یہ پیڑ پودے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن پیدا فرمائے، پیر کے دن۔ اتنے جو ہے ہرے بھرے ہیں اور یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم اس میں عبرت، اس میں نیچے بیٹھ کر کے چھاؤں میں سکونت حاصل کرتے ہیں، آرام، اور ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج یہاں جو ہے آئے ہوئے تھے ہم لوگ، بہت گہرائی ہے اور اتنی گہرائی ہے، ہم سب ابھی کچھ دیر کے بعد اوپر جائیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر ہم نے جو حدیث سنائی ابو ہریرہ کی، وہ یہ ہے کہ ہفتہ کے دن جیسے زمین پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو بنایا گیا۔ آپ نے پہاڑ بھی دیکھ لیا، اور پھر یہ ہرے بھرے جنگلات اور پیڑ پودے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا فرمائے۔ اور پھر منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے کام کاج کی چیز بنائے، جیسے لوہا وغیرہ، پتھر، یہ سب جو چیزیں ہیں، لوہا ہے، پتھر ہے، اور جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی چیزیں، یہ سب بنائی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا کیا ہے، اور پھر جمعرات کے دن یہ جو جانور چلتے ہیں، یہ ابھی یہ جنگلات میں جانور وغیرہ ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں، لیکن جو جو جانوریں ہیں، جو جانور چلتے پھرتے ہیں، چاہے رینگنے والی ہو، اڑنے والی، چلنے والی، پھرنے والی، تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ اور یہی دن جمعہ کا جو دن ہے، اس جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ 80 سال 4 مہینے کا بنتا ہے۔ یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے درمیان میں بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو بہرحال ہم سب پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اونٹ کو بنایا ہے۔ اونٹ کے اندر ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر جانوروں کے پیر میں ایک جوڑ ہوتا ہے جو گھٹنا کہا جاتا ہے، لیکن اونٹ کا 2 گھٹنا ہے اور 2 جوڑ ہے۔ اس کے بعد فرمائے اذا السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور ہم نے آسمان کو کیسے بلند بنایا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اونچائی پر ہے، اور اتنی اونچائی پر ہے کہ اگر ہم آسمان جانے چاہیں گے تو 500 سال لگ جائیں گے تب پہنچیں گے۔ اتنی دوری پر، اتنی اونچائی پر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ تو اسی کو فرمائے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ پہاڑ یہ ادھر دکھائیے آپ، یہ پہاڑ دیکھیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ سب پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے نصب کیا ہے کہ کیسے ہم نے زمین میں
पहाड़ को नस्ब कर दिया। देखिए, इला समाई कैफा रुफियत वइलल जिबाली कैफा नुसिबत वइलल अर्ज़ कैफा सुतिहत, और हमने ज़मीन को कैसे बिछा दिए हैं। ज़मीन में गौर फिक्र नहीं करते हैं। ये ज़मीन है जो अल्लाह ताला ने हम सब के फ़ायदे के लिए बिछा दिए ताकि हम इसमें चलें फिरें रहें। वइलल जिबाली कैफा नुसिबत वइलल अर्ज़ कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। आप जो है नसीहत करने वाले को नसीहत करते रहें, इसलिए कि आप तो नसीहत करने वाले हैं। आप लोगों को दावत देते रहें, दीन पहुंचाते रहें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप दीन के काम करते रहें, इसलिए कि आपका काम क्या है, अंत मुज़क्किर, आपका काम है लोगों को नसीहत करना, लोगों को दीन तालीम देना और पहुंचाना। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उस पर निगहबान नहीं है, निगरान नहीं है। अगर वो नहीं दीन इस्लाम को कबूल कर रहा है, अगर वो फिर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती दीन इस्लाम में लाएं और दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती उसको मुसलमान बनाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। जो आए आए, ना आए तो अल्लाह ताला के ऊपर है। तो कहते हैं लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर जो कोई कुफ्र करे, फिर जाए, मुंह मोड़ ले, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं इल्ला मन तवल्ला व कफर फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, कि अल्लाह का काम है कि उनका अजाब देना, उनका अजाब जो क्या है उसको हिसाब व किताब लेना अल्लाह के ज़िम्मा है। इन्ना अलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक दिन हमारे तरफ ज़रूर लौट कर आएंगे और फिर हमारा ज़िम्मा है उनका हिसाब लेना। तो अब यह क्या है, ये तमाम चीज़ें जो दिखाई गई है, एक मरतबा दिखा दीजिए। आज हम लोग यहाँ नहाने आए थे, बहुत इबरत की जगह है और बहुत ऊंचाई पर पहाड़ है, और इतने ऊंचाई अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से जो क्या दिखाएंगे आपको। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये 325 सीढ़ियाँ बनी हुई है। आपको अभी कुछ देर के बाद सीढ़ियाँ भी दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। 3 ये अभी हम सब वहाँ आपको दिखाएं, नाज़रीन हजरात, ये सब देखें, हम पहाड़ वगैरह देख लिए। अब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ये सीढ़ी है जो सरकार की तरफ से बनाया गया है, और ये सीढ़ियाँ तकरीबन 325 से पार है। हम सब जो है एक दिन गिने भी थे, 300 सीढ़ियाँ जो है कि 325 सीढ़ियाँ हम सब गिने थे। अगर कमी बेसी उसमें हो सकती है तो हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर एक उम्मीद यही कि 300 से भी पार है। 325 तो हम लोग अपने आँखों से और जो क्या हाजिरी के मौजूदगी में गिने थे। ये सीढ़ियाँ हैं, अभी हम सब चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ दूरी तक। ये एक अजीब जो यहाँ जगह है, और इस जगह का ये रांची एरिया में पड़ता है, झारखंड के जिला रांची में। और ये पहाड़ भी आपको दोबारा दिखा दिया जा रहा है, आप सब हज़रात देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। हम सब चढ़ते हैं तो डबल सांस लेने पड़ता है, ऐसा हो जाता है। इतने जो है क्या है, सख्ती और शिद्दत के साथ चढ़ना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पर है। और ये नीचे आज तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए फव्वारे जो है नहीं वहाँ से आ रहे हैं, वरना पानी का फव्वारा भी वहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे उतरता है बहुत ज़ोरदार। 3 ये अभी हम सब जो है क्या है दरमियान में है, बीच में आ गए हैं नीचे से, और ऊपर पहुंचने में अभी और आधा बाकी है। और ये सीढ़ियाँ अभी देखिए वाइट कलर के जितने नज़र आ रहे हैं ऊपर तक, ये सारी की सारी सीढ़ियाँ हैं। और गहराई आप देखिए, बहुत ज़्यादा गहराई है, इतने गहराई है। ये सब इबरत हासिल करने की चीज़ है। सांस भी फूलने लगा, इतना जो है क्या गहराई है चढ़ते चढ़ते। और फिर आपको आगे दिखाते हैं, चलिए अब आगे देखिएगा। 3 देखिए हम सब जो है जिस सीढ़ी के तरफ से बोले थे उठेंगे, वो सीढ़ी उधर है, और उधर से हम लोग सीढ़ियाँ तय कर चुके हैं और सीढ़ियों से गुजर चुके हैं। अब फिर हम लोग चोटी के जो है पहाड़ की चोटी पर आ चुके हैं, एकदम इंतहा तक। और फिर आने के बाद यहाँ रुके हुए, सांस भी जो है क्या है बहुत ज़ोरदार लेने पड़ रहा है। और नीचे देखिए, वहाँ हम लोग गए थे नहाने के लिए, और ये इतनी गहराई है। इधर आइए दिखाते हैं, इधर आइए आप कैमरामैन, इधर आ जाइए, इधर दिखाइए ये गहराई। ये हमें सबक देता है और इससे हम सबक सीख सकते हैं कि इतनी गहराई ये है और इतनी ऊंचाई पर हम सब हैं। और ये इतनी गहराई है कि आपको मोबाइल में शायद कम नज़र आता होगा, कैमरा को जो क्या आप बड़ा करके दिखाइए, बहुत गहराई है। हम ये सब में पत्थर अगर डालेंगे तो हमको लगता है कि कम से कम
30 सेकंड से ज़्यादा ही लग जाएगा, 30 सेकंड लग सकता है, उम्मीद तो यही है 30 सेकंड। और जिस गहराई के बारे में यानी जहन्नम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के एक किनारे पर, जहन्नम के एक किनारे पर अगर हम पत्थर डालेंगे, एक किनारे पर अगर हम पत्थर डालेंगे, जैसे ये जहन्नम की तरह ये खाई बनी हुई है, बल्कि जहन्नम तो इससे भी खतरनाक होगी, लेकिन यहाँ जहन्नम की तरह खाई बना दिया गया है दुनिया ही के अंदर अल्लाह ताला ने, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में साइड में अगर एक पत्थर साइड से गिराएगा तो वो गहराई तक जाने के लिए उसको 70 साल लग जाएगा। उस पत्थर को जैसे हम गिरा रहे हैं अब ये पत्थर हम गिराने, देखिए आप पत्थर को अभी बहुत दूर तक ये पत्थर गिरा दिया है। आप ये कहिए कि 30 सेकंड जो है क्या आपको लग सकता है, ये इतने ऊंचाई पर ये पहाड़ है और इतने खाई है यहाँ इस इलाके में, ये रांची ज़िला के अंदर है और बहुत गहराई है। हमें वो हदीस पढ़ करके याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि उस गहराई का अंदाज़ा अगर हम जहन्नम के साइड से कोई पत्थर गिराएंगे, और ऐसा पत्थर, भारी पत्थर कहा है कि भारी पत्थर अगर गिराएंगे तो उस पत्थर को जाने के लिए 70 साल लग जाएंगे जहन्नम के गहराई तक पहुंचने के लिए, फिर भी नहीं पहुंच सकता है, इतनी गहराई जहन्नम में है। और हम इस गहराई को देख करके हमें अफसोस होता है कि जो जहन्नम में जाएगा तो क्या आलम होगा उसका। और हर एक शख्स को, चाहे जन्नती आदमी हो चाहे जहन्नमी आदमी हो, सबको जो है क्या जहन्नम से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसलिए कि जो पुलसरात बनाया जाएगा, पुलसरात का रास्ता, वो रास्ता असल में जहन्नम के बीचों बीच बनाए जाएंगे और फिर वो रास्ता में पार होकर के सबको गुजरना है, सबको गुजरना है और गुजर करके फिर जन्नत जाना है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इतने जो क्या है जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमाए और पुलसरात में गुजरना आसान फरमाए। और जहन्नम में जब इंसान गुजरेंगे तो हर साहिब ईमान को अल्लाह ताला गुजरने में हिसाब आसानी फरमाए। अब ये जो पहाड़ हम लोग जिसका जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को इतवार के दिन, ये सोमवार के दिन बनाया है, इतवार के दिन पहाड़ों को जो इतवार के दिन अल्लाह ताला ने बनाया है, ये पहाड़ है हम सब देख रहे हैं अभी। और इस पहाड़ की जो ऊंचाई भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कितने हैं, और पूरे चारों तरफ पहाड़ है। और ये जो जिसके बारे में कहा गया कि ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, ये सारे के सारे दुनिया के अंदर पेड़ पौधे अल्लाह तबारक व तआला ने असल में लगाए हैं। ये उसके बाद जो है क्या फिर इंसान अपने से बीज हुआ वो बीज डालते रहा और फिर जो क्या उससे पेड़ पौधा निकलते रहा और इंसान कहने लगा कि हम सब ये सब लगाए हैं ये दरख्त वगैरह। न तो असल तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बिछाई और ज़मीन में फिर पहाड़ रखे, पहाड़ के बाद फिर दरख्त लगाए और फिर दरख्त लगाने के बाद लोहा वगैरह जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको बनाए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नूर को, रोशनी को बनाए और फिर इंसानों को पैदा फरमाए जुमा का दिन, और फिर इंसान के फ़ायदे के जो चीज़ें हैं वो सब पहले बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है क्या है इन जगहों में आने के तौफीक अता फरमाए और फिर इन जगहों में आकर के इबरत हासिल करने को तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि ये सब इबरत की जगह है, ये तो एक छोटा सा जो है क्या है छोटी सी जगह है, वरना इससे भी खतरनाक दुनिया के अंदर खाई अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए ताकि जो इंसान देखे और इबरत हासिल करे। ये सब दिखा दीजिए एक बार, ये जितने पेड़ पौधे हैं आप देख सकते हैं। आपको मौका मिलेगा तो आप आइएगा, रांची ज़िला के अंदर है और ये आपका बुढ़मू जो है क्या है क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ से जो है क्या बोर्ड बाज़ाब्ता लगाया गया है, उस बोर्ड से जो है क्या आप किलोमीटर भी देख करके तय कर सकते हैं और चलते चलते आ सकते हैं। अल्लाह ताला से देखिए हम सब अब आखिरी हम लोगों का टाइम है, अब हम लोग भी यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, चले जाएंगे। और एक बार जो है आखिर में दिखा दिया जा रहा है कि ये सब गहराई एक बार दिखा दीजिए। कैमरामैन जो है और एडिटर हजरात ये सब मेरे साथ आए हुए हैं, गुस्ल करने के लिए आए थे और ये सब गहराई यहाँ अभी भी देख रहे हैं। बड़ा अफसोस लगता है कि इतनी गहराई यहाँ है, इंसान गिरता है तो जान उसका जो क्या है आखिरी है और बचता नहीं है। और बहुत इंसान यहाँ मर भी चुका है। जब बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम के वक्त ये इसमें बहुत ज़ोरदार बारिश की वजह से पानी बहता है और फिर वो पानी इतना ख़तरनाक बहता है कि यहाँ फव्वारे की तरह यहाँ से गिरता है यहाँ से नीचे। और वो सब जो नहा रहे हैं वो बच्चे सब, तो सारे बच्चे जो क्या वहाँ तैर रहे हैं
اور تیرنا بھی جو کیا ہے ہم لوگ بھی ابھی تیر کے آئے ہیں اور تیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کیا ہے ایک تالاب میں تیرنے سیکھے اور تیرے. تو اس نیت سے بھی جو کیا ہے آدمی کو نہانا چاہیے, تالاب میں جا کر کے, ندی نالے میں جا کر کے نہانا چاہیے جہاں پانی میں تیر سکتے ہیں. اور تیرنا بھی سنت ہے اور ایک سنت ادا کرنا چاہیے جس طرح. اسی لیے ہم لوگ بھی آئے تھے یہاں اور ایک سنت بھی ادا کیے تیرنے کا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ہر صاحب ایمان کو جو تیرنا چاہیے, جو سنت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بات کہی گئی ہے قبول فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.